اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خیران۔ آج کا ہمارا درس توضیح المسائل سے متعلق ہے، جس میں ہم نے پڑھنا ہے میراث کے احکام، یعنی میراث کن کن لوگوں کو ملتی ہے، کون کون لوگ جو ہے وہ میراث سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں، کن کا کون کون بھی وارث ہے اس میراث کا، کس کس کو مل سکتا ہے، کتنا کتنا مل سکتا ہے، اور اگر اس کی اپنے بھی کچھ واجبات رہتے ہوں، اگر اس پر خرچ کرنے کے علاوہ باقی جتنا بچہ ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آیا اس میں فقط اور فقط اپنی جو اولاد ہے وہی حصہ پاتی ہے یا رشتہ دار بھی اس میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے اس احکام میں پڑھنے۔ میراث کے جو احکام ہے وہ 3 گروہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اشخاص متوفی سے رشتہ داری کی بنا پر ترکہ پاتے ہیں، یعنی جو بھی ان کی جو جائیداد وغیرہ ہے یا مال و متاع ہے، جو شخص مر گیا ہے اس کی چیز موجود تھی، تو 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال سے وہ ترکہ پاتے ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ متوفی کا اپنا باپ، اس کی ماں اور اولاد ہے، اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کا اپنا بیٹا جو ہے وہ مر گیا، لیکن اس کے پوتے ہیں یا نواسے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تک یہ سلسلہ نیچے چلا جائے ان میں سے جو کوئی متوفی سے زیادہ قریب ہو وہ ترکہ پاتا ہے، اور جب تک اس گروہ میں سے ایک شخص بھی موجود ہو تو دوسرا گروہ ترکہ نہیں پاتا۔ دوسرا گروہ دادا دادی، نانا نانی، بہن اور بھائی ہیں۔ بھائی اور بہن نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولاد ہے، جسے اوپر کہا، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو کوئی متوفی سے زیادہ قریب ہو وہ ترکہ پاتا ہے، جب تک اس گروہ میں سے ایک شخص بھی موجود ہو تیسرا گروہ ترکہ نہیں پاتا، ٹھیک ہے، اگر پہلے والے اشخاص میں سے جو اس کے اپنے ماں باپ اور اولاد ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں تو پھر دوسرے گروہ ارث پاتا ہے، دادا دادا، نانی نانی، بہن بھائی، اور اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر تیسرے گروہ کی طرف یہ ترکہ جاتا ہے۔ تیسرا گروہ چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد۔ جب تک متوفی کے چچاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور خالہوں میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو ان کی اولاد ترکہ نہیں پاتی، لیکن اگر متوفی کا پدری چاچا اور ماں باپ دونوں کی طرف سے چچا زاد بھائی موجود ہو اور ماموں اور خالہ موجود نہ ہو تو ترکہ باپ اور ماں کی طرف سے چچا زاد بھائیوں کو ملے گا اور پدری چچا کو نہیں ملے گا، لیکن اگر چچا یا چچا زاد بھائی متعدد ہوں یا متوفی کی بیوی زندہ ہو تو یہ حکم اشغال سے خالی نہیں۔ ابھی یہ جو 3 گروہ ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ان کے احکام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر خود متوفی کا چچا یعنی جو مرا ہے اس کا چچا، اس کی پھوپھی، اس کا ماموں، اس کا خالہ اور ان کی اولاد یا ان کی اولاد کی اولاد نہ ہوں تو اس کے باپ اور ماں کے چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پدری جو اس کا آگے سلسلہ جاری ہوتا ہے، پدری یعنی باپ اور ماں کے چچا، ٹھیک ہے، پدری اور مادری، پدری اور مادری، تو اس کے باپ اور ماں کے چچا، جب اس کا اپنا چچا بھی نہیں ہے، اس کا اپنا ماموں بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا بھی رشتہ دار یا گروہ اوپر جو جتنے بھی گروہ ہم نے بیان کیے ان میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا ترکہ کس کے پاس جائے گا؟ اس کا ترکہ جائے گا اس کے باپ اور ماں کے چچا، اس کی پھوپھی اور ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کی اولاد ترکہ پاتی ہے، یعنی اگر اس کے بابا اور ماں اور بابا کے چچا بھی نہیں ہے تو اس کی اولاد پائے گی، اگر وہ بھی نہ ہو تو وہ متوفی کے دادا دادی، نانا نانی اور کے چچا، پھوپھی اور ماموں اور خالہ ترکہ پاتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کی اولاد ترکہ پاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے آگے سلسلہ سے در سلسلہ جو ہے وہ انسان ترکہ پاتا جاتا ہے اگر اس سے پہلے والا گروہ نہ ہو، تب آگے سلسلہ چلتا ہے۔ بیوی اور شوہر جیسا کہ بعد میں تفصیل سے بتایا جائے گا ایک دوسرے سے ترکہ پاتے ہیں۔ پہلے گروہ کی مثال، پہلا گروہ کون سا ہے؟ پہلا گروہ کہ جس میں باپ، ماں، اولاد، ٹھیک ہے، اور اگر اولاد نہیں تو اس کی اولاد، ٹھیک ہے۔ پہلے گروہ کی میراث، اگر پہلے گروہ میں سے صرف ایک شخص متوفی کا وارث ہو، مثلا باپ یا پھر ماں،
या अकलौता बेटा या अकलौती बेटी हो तो मुतवफ़्फ़ी का तमाम माल उसे मिलता है, यानी एक ही है। अब मुतवफ़्फ़ी मिसाल के तौर पर एक शख्स है अलिफ, ठीक है? अलिफ शख्स है, उसका बाप भी नहीं है, उसकी माँ भी नहीं है, लेकिन उसका एक बेटा है। ठीक है? उसकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है। उसका एक ही बेटा है। अब इस बाप जो मर गया है, उसकी जितनी भी कुल जायदाद होगी, वो किसकी होगी? उसके जो बेटा है, अकलौता बेटा जो है, वो उसके नाम पे होगी। और अगर बेटे और बेटियाँ वारिस हों, तो माल को यूँ तक़सीम किया जाता है कि हर बेटा-बेटी से दुगना हिस्सा पाता है। या अब क्या है, एक है शख्स जो है, शख्स बा जो है, उसकी माँ भी ज़िंदा है, उसका बाप भी ज़िंदा है और उसके बेटे भी और बेटियाँ भी हैं, ठीक है? तो अब है कि उसका भी कितना-कितना सबको मिलेगा। तो पहली चीज़ उन्होंने बताई, अगर बेटा या बेटियाँ मौजूद हैं, तो माल को इस तरह तक़सीम करें कि लड़कों को दुगना हिस्सा, यानी 2 हिस्से लड़कों के और 1 हिस्सा लड़की का। किस तरह से? अगर एक उसके 2 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं, तो बेटों के पास 4 हिस्से जाएँगे, 2 एक का, 2 दूसरे का और बेटियों का 1-1 हिस्सा जाएगा। ठीक है? यानी 4 और 3 7, 7 हिस्से उसके अपनी औलाद के पास जाएँगे। अगर मुतवफ़्फ़ी के वारिस फ़क़त उसका बाप और उसकी माँ हों, तो माल के 3 हिस्से किए जाते हैं, जिनमें से 2 हिस्से बाप और 1 हिस्सा माँ को मिलता है। लेकिन अगर मुतवफ़्फ़ी के 2 भाई और 4 बहनें या 1 भाई और 2 बहनें हों और वो जो सब के सब मुसलमान आज़ाद और एक बाप की औलाद हों, ख़्वाह उनकी माँ हकीकी हो या सौतेली बशर्त ये पैदा हो चुकी हों, तो अगरचे वो मुतवफ़्फ़ी के बाप और माँ के होते हुए तड़का नहीं पाते, लेकिन उनके होने की वजह से माँ का माल का छठा हिस्सा मिलता है और बाकी माल बाप को मिलता है। ठीक है? यानी अगर उसके भी बहन-भाई हैं, मौजूद हैं, जो कि माँ और बाप ज़िंदा हैं, उनके होते हुए जो बहन-भाई हैं, वो दूसरे ग्रोह में आते हैं, वो तरका उनका भी नहीं बनता, लेकिन उनके होने की वजह से माँ को छठा हिस्सा मिलता है, ठीक है? उसको छठा हिस्सा मिलता है और बाकी जो माल रह जाता है, वो सारे का सारा बाप को मिलता है। पहले अगर फ़क़त और फ़क़त माँ और बाप हैं, तो 2 हिस्से बाप के और 1 हिस्सा माँ का। और अगर बहन-भाई हैं तो 6 हिस्से माँ के, छठा हिस्सा माँ का, 6 हिस्से नहीं छठा हिस्सा माँ का और बाकी हिस्सा बाप का। यानी जितने भी बहन-भाई हैं उन सबको एक-एक तक़सीम करके फिर माँ जो है जब मुतवफ़्फ़ी के वारिस फ़क़त उसका बाप, माँ और एक बेटी हों, लिहाज़ा उसके गुज़श्ता मसले में बयान करदा शराइत रखने वाले बहन और भाई-बहनें ना हों, यानी जो मुसलमान हों, आज़ाद हों और एक ही बाप से हों और पैदा भी हो चुके हों, ठीक है? वो शराइत हैं उस बहन-भाइयों के जो विरासत में हिस्सा पाते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो माल के 5 हिस्से किए जाएँगे। बाप और माँ उनमें से एक-एक हिस्सा लेते हैं और बेटी 3 हिस्से लेती है। अगर मुतवफ़्फ़ी के साबिक़ा बयान करदा शराइत वाले भाई या बहनें हों, तो बाप को 1/5 हिस्सा, माँ को 1/6 हिस्सा और बेटी को 3/5 हिस्से मिलते हैं और जो 1/3 हिस्सा बाकी बचा है, उसके बारे में एहतमाल है ये माँ का हिस्सा होगा, जबकि एहतमाल है कि 3/4 हिस्सा लड़की का और 1/4 हिस्सा बाप का होगा। इसमें जो फ़र्क है उसके बारे में एहतियात वाजिब की बिना पर बाहम मुसालहत की जाए, यानी आपस में एक-दूसरे से राज़ीनामा कर लिया जाए। इसी तरह अगर मुतवफ़्फ़ी के वारिस फ़क़त उसका अपना एक बाप, माँ और एक बेटा हो, ठीक है? बाप है, माँ है और एक बेटा हो, तो माल के 6 हिस्से किए जाएँगे, जिनमें से बाप और माँ को एक-एक हिस्सा और बेटे को 4 हिस्से मिलते हैं। अगर मुतवफ़्फ़ी के सिर्फ़ चंद बेटे हों या सिर्फ़ चंद बेटियाँ हों, तो उन 4 हिस्सों को आपस में मसावी तौर पर तक़सीम कर लेते हैं। अगर बेटे भी हों और बेटियाँ भी हों, तो उन 4 हिस्सों को इस तरह तक़सीम किया जाता है कि हर बेटे को या हर बेटी से दुगना हिस्सा मिलता है। ठीक है? जैसे ऊपर मैंने बयान किया है, अगर लड़के हैं ज़्यादा और लड़कियाँ हैं
ठीक है? अगर लड़के और लड़कियाँ बराबर हैं, अगर फ़क़त लड़के हैं और फ़क़त लड़की हैं, फ़क़त लड़के हैं तो एक जैसा जाएगा, फ़क़त लड़कियाँ हैं तो एक जैसा जाएगा। लेकिन अगर कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियाँ हैं, तो जो लड़के हैं उनको 2-2 हिस्से मिलेंगे और लड़कियाँ उनको 1-1 हिस्सा मिलेगा। अगर मुतवफ़्फ़ी के वारिस फ़क़त बाप या माँ या 1 या कई बेटे हों, तो माल के 6 हिस्से किए जाते हैं, जिनमें से 1 हिस्सा बाप का या माँ को, ठीक है? क्योंकि फ़क़त बाप या माँ है, अगर दोनों होंगे तो 1 हिस्सा बाप को, 1 हिस्सा माँ को और 5 हिस्से जो बाकी बचेंगे वो बेटे को मिलेंगे और अगर कई बेटे हों तो उन 5 हिस्सों को आपस में मसावी तौर पर तक़सीम कर दिया जाएगा। अगर बाप या माँ मुतवफ़्फ़ी के बेटों और बेटियों के साथ उसके वारिस हों, तो माल के 6 हिस्से किए जाते हैं, जिनमें से 1 हिस्सा बाप का, 1 हिस्सा माँ को, बाप या माँ को और बाकी जो हिस्सों को यूँ तक़सीम करेंगे कि हर बेटे को बेटी से दुगना मिलता है। अगर मुतवफ़्फ़ी के वारिस फ़क़त बाप या माँ और 1 बेटी हो, तो माल के 4 हिस्से किए जाएँगे, जिनमें से 1 हिस्सा बाप का, 1 हिस्सा माँ का और बाकी जो हिस्से होंगे वो बेटी को मिलते हैं। अगर मुतवफ़्फ़ी के वारिस फ़क़त बाप या माँ और चंद बेटियाँ हों, तो माल के 5 हिस्से किए जाएँगे। उनमें से 1 हिस्सा बाप का और 1 हिस्सा माँ का, ठीक है? बाप है तो बाप और माँ है तो फिर माँ का, बाकी जितना भी हिस्सा बचेंगे 4 हिस्से, तो वो आपस में बेटियों को तक़सीम यानी हर बेटी का अलग-अलग हो जाएगा। और अगर मुतवफ़्फ़ी की औलाद ना हो, तो उसके बेटे की औलाद ख़्वाह वो बेटी ही क्यों ना हो, मुतवफ़्फ़ी के बेटे का हिस्सा पाती है और अगर बेटी की औलाद ख़्वाह वो बेटा ही क्यों ना हो, मुतवफ़्फ़ी की बेटी का हिस्सा पाती है। यानी ऐसा नहीं है कि आगे अगर बेटी का बेटा है तो बेटे को जितना हिस्सा मिलेगा, नहीं, जो बेटी का इतना हिस्सा बन रहा था, चाहे बेटी का आगे बेटा हो तो उसको उतना ही मिलेगा। मसलन अगर मुतवफ़्फ़ी का नवासा यानी बेटी का बेटा और एक पोते की बेटी हो तो माल के 3 हिस्से किए जाएँगे, जिनमें से 1 हिस्सा नवासे को, 2 हिस्से पोती को मिलेंगे। नवासा पोती की मीरास लेने में मैयत के बाप और माँ का होना शर्त नहीं है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।